Okay, so we are starting with CSS, margin, padding, and border. So they are called CSS box model. So box model includes three properties in CSS. First of the margin, second is padding, and the third property is border. So these three properties, margin, padding, and border, are a part of CSS box model. So what is box model? Let's start. So let's say we have a simple layout. So how we'll start with the layout? HTML5 template. So this is the tag. The first is asterisk margin 0. Then let's say we have a hyperlink with texture decoration none. Okay. Then we'll call the body, and with body, let's say font is 14 pixel sans serif. Okay. And then we have a wrap class with max width 1200 pixel and margin auto. Okay. So now within wrap we have a header div with h1, nav for navigation, and main for main content, and the last is footer. This is footer, this is main. Okay, and then we have nav. So nav, let's say we have some links, and within header we have h1, the name of brand. This is my page layout.html. So we have h1, we have navigation, then we have h2 and paragraph, and this is the content. Font size increase karte hain, let's say from 14 to 16. So this is okay now. Now we'll call these two elements like header. So what is header? With background, let's say this, and inside gap we use padding. So padding क्या है? The gap inside, not outside, it's inside gap. The second is nav. Now let's say with dark background. So with dark background, font color should be white, but there is no white color for hyperlinks. Okay, hyperlink kabhi bhi they cannot inherit color from parent. So for that use nav's a color white. Now use color white to a, not to nav, क्योंकि वो inherit नहीं करता. Main padding 10, background this, and the last is footer. Texture and center, padding 10, and let's say background. Okay, so these are my two divisions: header, nav, contain, main, footer inside a wrap. So with this a wrap with 1200 width. So now we always use width, height, max height, margin, padding, these properties. So these all are CSS box model properties. So let's see what is CSS box model. So when you inspect any element, like see, we are going to inspect the wrap now. So this is a wrapper. So now we'll wrap this and see the max width is 1200, or let's say we use only width. Fixed width is 1200. So what is the width of wrap now? 1200, and there is no height. So default height is auto, but right now the height is 253. So using this, so this is a snippet of picture of real picture of your DOM elements. So this is the picture of your box model. So see the width is how much? 1200 and height is 253. तो 1200 width है किसकी? wrap की, and height कितनी है? 253. Why 253? Because content जो है वो इतना ही है. Now check the body. तो ये किसका है? Body का. So see for the body, width is 1440, my laptop's resolution, and height is 253. This is HTML, ये भी उतना ही आ रहा है 1440 to 253. So this is HTML element, ये है body, and this is my wrap. Now we'll inspect header. For header, see the width कितनी आ रही है? See, it's not 1200, ये कितनी आ रही है? 1180. Why? So ये 1180 क्या है? What is this 1180? When I'm selecting header, so inside header it's 1180 into 37. So 37 है height, 1180 है width. So is there any width? क्या header की width दी है हमने? No, so it's automatic है. So why it's 1180? Because there's a 10 pixel padding inside. So there's a
10 pixel padding. If you're not using padding, तो see header 1200 है, but if you're using padding, तो वो automatically 1180 हो जाता है, because padding से क्या होता है, inside space जो होगा वो automatically कम हो जाएगा. So now inside space is reduced, so इसके अंदर space कम है within header, तो see the H1 is 1180 now, क्योंकि there is a padding of 10 pixels within header. So this margin, padding, content, they all are a part of CSS box model. So the first this 1180 by 37, this is called CSS content. तो ये box model में क्या होता है, this is the content. Content के साथ टच होती है padding, so this is the padding. Then आता है border, and border के बाहर क्या होता है आपका margin. तो border के बाहर क्या होता है margin. तो the wrap width कितनी है 1200, और ये total भी 1200 है. Now do one thing, with this 1200 add some padding 10 pixels. तो 1200 and 10 pixels margin. See now, this is 1200 और इसकी padding कितनी हो गई 10 pixel. So when you inspect this, जहाँ मेरा cursor है, see this width कितनी आ रही है 1200, but when you inspect your wrap, now see यहाँ पे जो इसकी width आएगी ना इस portion में, see कितनी width है इसकी, आधे same. तो दो जगह width लिखी आ रही है, एक तो यहाँ पे कंटेंट बॉक्स की, और एक आएगी यहाँ पे ऑन हवर, माउस हवर पे, सी div dot wrap. So the width is 1220 into 273. So what is 1220 and what is 1200? जो 1220 है, it's a total space, इसको हम लोग कहते हैं border box, and the 1200 one is content box, means the inside or used area. If I use a background for wrap, जैसे कि background color red, तो let's see red कितने कलर में आएगा. तो red कितने कलर में आ रहा है 1220 में, बट रैप के अंदर कंटेंट कितना है 1200. तो इज दिस थिंग क्लियर. तो रैप कितना है मेरा, तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ रैप 1200. ये 1200 किसकी विड्थ है, दिस इज द विड्थ ऑफ कंटेंट, इनर कंटेंट जो अंदर का कंटेंट है उसकी विड्थ है, ठीक है. एंड वी हैव 10 पिक्सल पैडिंग, नाउ वी आर यूजिंग पैडिंग. तो पैडिंग की वजह से क्या हो रहा है, रैप का जो टोटल साइज है वो इंक्रीज हो गया, एंड इट्स 1220 नाउ. सो थिंग इज कि 1200 क्या है आपका कंटेंट, और उसमें दोनों तरफ 10 की पैडिंग एक्स्ट्रा है. सो नाउ विद एक्स्ट्रा पैडिंग टोटल स्पेस हो जाएगा 1220. सो दैट मीन्स ये जो रेड बैकग्राउंड है ये कितना आ रहा है, इट्स नॉट 1200, इट्स 1220. सो बाय यूजिंग पैडिंग, ये क्या कर रहा है पैडिंग, इसके टोटल स्पेस को इंक्रीज कर देगा. इफ आई यूज 50 पिक्सल्स पैडिंग, नाउ दिस इज 1300, बट कंटेंट इज अगेन हाउ मच 1200. तो इनर कंटेंट लाइक दीज 4 एलिमेंट्स आर 1200, लेकिन जो टोटल रैप है वो कितना हो चुका है आपका, दैट इज 1300, इट्स 1300 पिक्सल, ठीक है. नाउ तो बेसिकली व्हाट इज विड्थ, विड्थ किसकी विड्थ है, टोटल की, जो यहाँ पे 1300 दिखा रहा है वो, या कंटेंट की. सर एक डाउट पूछना था. अभी जैसे आपने ये जो हेडर डिफ का अभी आपने बताया कि अगर उसको मैं पैडिंग लगाऊंगा तो फिर उसकी इंटरनल स्पेस कम हो जाएगी. सेम चीज अगर आप इस वाले उसमें डिफ में लगा रहे हो तो उसका जो इंटरनल अभी आप बता रहे हो कि कांस्टेंट ही रह रहा है. हाँ, देयर इज अ रीजन, हेडर की विड्थ हमने डिफाइन नहीं की ना, देयर इज नो विड्थ ऑफ फॉर हेडर, रैप की विड्थ डिफाइंड है, ठीक है. तो रैप की विड्थ क्या है, ओके सर. डिफाइंड है. सो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल बॉक्स साइजिंग. तो ये बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स की वजह से होता है. तो व्हाट इज डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग फॉर डिव, डिव की डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग होती है कंटेंट बॉक्स. तो कंटेंट बॉक्स मींस विड्थ जो है वो कंटेंट की विड्थ है. सो विड्थ किसकी विड्थ है, विड्थ किसकी विड्थ है, कंटेंट की. कंटेंट होता है ये वाला एरिया, इनसाइड एरिया. बट देयर इज अ प्रॉपर्टी इन CSS3 दैट इज box sizing border box. So earlier box sizing थी content box, and now we are using box sizing border box. देखो ये टोटल कम हो गया. now चेक करो रैप कितना आ रहा है 1200, बट सी द कंटेंट, कंटेंट कितना हो गया 1160. now ये विड्थ किसकी विड्थ है, टोटल या कंटेंट, कंटेंट. ये टोटल की हो गई है. अर्लियर ये किसकी थी, कंटेंट की, एंड नाउ ये किसकी है, टोटल की है. So that's why in modern layouts we use this option with universal asterisk margin 0, use box sizing border box. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो width है ना 1200, ये टोटल width होगी. अर्लियर ये width किसकी थी, ये कंटेंट width थी,
इनर की, तो दैट मीन्स पैडिंग जो थी वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रही थी, बट अब पैडिंग एक्स्ट्रा नहीं इंक्लूड करके 1200 हो जाएगा। तो पहले क्या था 1200 प्लस 2020 ये 1240 था विदाउट बॉक्स साइजिंग, विद बॉक्स साइजिंग ये टोटल 12 ही रहेगा और 2020 इसमें इंटरनल इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है सीएसएस की, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो सी हाउ पैडिंग इज वर्किंग, तो पैडिंग कैसे, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, दिस ब्लू कलर एरिया, ये जो अंदर ब्लू कलर का एरिया ना, दिस इज योर कंटेंट। तो राइट नाउ कंटेंट कितना है 834 बाय 344, तो ये कंटेंट का एरिया है, मीन्स इनर कंटेंट इतना होगा, बट जो टोटल स्पेस है वो इतना होगा 868 इंटू 374। वाई, क्योंकि इसमें पैडिंग भी तो ऐड होगी ना टोटल एरिया में, इसमें पैडिंग भी ऐड होगी। तो व्हेन यू बाय अ हाउस, आपका जो फ्लोर एरिया होता है आप उतना स्पेस को यूज करते हो, लेकिन आपका जो टोटल बिल होता है, जो घर का टोटल वो होता है आपका टैक्सेशन होता है, वो फ्लोर एरिया पे नहीं होता, वो किस पे होता है, कारपेट एरिया, नहीं कारपेट एरिया तो आपका वो है ना जो आप यूज कर रहे हो, सुपर एरिया। वो आपका टोटल जैसे सुपर एरिया जैसे आप कहते हो, तो दैट इज सुपर एरिया। तो यहाँ पे दिस 868 इज सुपर एरिया, मीन्स आपका जो घर का बिलिंग होती है वो इस पे होती है, बट जो आप कंज्यूम करते हो यूज करते हो वो इतना ही करते हो 838 बाय 344। क्यों, क्योंकि उसमें पैडिंग है। अब पैडिंग क्या है, लेट्स से आपकी वॉल्स आ रही है बीच में, बैल्कनीज हैं, तो वो आपकी यूजेबल स्पेस में नहीं होती। 838 क्या है आपका कंटेंट एरिया, और 868 क्या है आपका बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स मतलब टोटल। तो द टोटल बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स इज द सम ऑफ कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर। तो बॉर्डर बॉक्स इसका सम होता है, इट इंक्लूड्स कंटेंट बॉक्स, पैडिंग एंड बॉर्डर। तो कंटेंट के स्पेस में ऐड कर दो पैडिंग एंड देन ऐड कर दो बॉर्डर, तो ये हमारा हमेशा टोटल क्या होगा बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर। ठीक है, तो व्हाट आर द यूनिट ऑफ वेट, तो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं पिक्सल्स, ईएम एंड परसेंटेज। ईएम आई रेकमेंड, आई विल नॉट रेकमेंड टू यूज ईएम, क्योंकि ईएम फॉन्ट साइज के रिलेटिव होती है। पिक्सल्स यू कैन प्रेफर और यू कैन प्रेफर परसेंटेज। तो यूनिट्स आपकी पिक्सल्स, परसेंटेज, ईएम, आरईएम और वीडब्ल्यूवीएच भी होती है। सो व्हाट इज विड्थ एंड हाइट, फॉर अ डिव विड्थ हाइट क्या है, width and height of content, but by using this property box sizing border box universally width किसकी width हो जाएगी टोटल की, यानी कि बॉर्डर बॉक्स की। तो अब ये width किसकी है बॉर्डर बॉक्स, पहले किसकी थी ये कंटेंट बॉक्स की। तो कंटेंट बॉक्स क्या है, तो टोटल कंटेंट एरिया मीन्स द यूजेबल एरिया, जितना आप इसमें कंज्यूम करते हो। जैसे लेट्स से वी हैव अ स्टेडियम, तो एक स्टेडियम में जो ग्राउंड होता है वो उसका कंटेंट है, लेकिन स्टेडियम का टोटल एरिया क्या होता है, स्टेडियम की बाउंड्री, स्टेडियम का क्या कहते हैं उसको पवेलियन, उसमें वो भी तो ऐड हो जाएगा। तो वो सब क्या है, तो दिस ये जो अंदर का ब्लू है ये आपका स्टेडियम है, मीन्स द प्लेइंग एरिया। लेकिन ये क्या है हमारा, लेट्स से पैडिंग क्या है पवेलियन, जिसमें मीन्स विजिटर्स बैठे हैं आपके, ठीक है, ऑडियंस बैठेंगे। एंड यहाँ पे बॉर्डर क्या है, लेट्स से द वॉल्स। तो जो टोटल एरिया होगा उसका स्टेडियम का वो कितना होगा, कंटेंट बॉक्स या बॉर्डर बॉक्स, तो टोटल स्टेडियम को तो एरिया बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स हो जाएगा। लेकिन स्टेडियम का अंदर जो जहाँ पे मैच हो रहा है वो कितना है आपका, वो आपका कंटेंट बॉक्स है। सो इट्स सेम इन सीएसएस, वी यूज विथ टोटल, बाय डिफॉल्ट इट्स कंटेंट एंड नाउ वी आर कंज्यूमिंग कि वो बॉर्डर बॉक्स है, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका। तो विथ सर के लिए यहाँ वी पे हैव, कंटेंट बॉक्स का जो साइज है वो जो एक्चुअल कंटेंट है प्लस जो हमने पैडिंग अलग से दिया है वो मिला करके हुआ है। कंटेंट नहीं वो अगर हम बॉर्डर बॉक्स है, नॉट कंटेंट। कंटेंट तो इनर का यूजेबल एरिया है ना, वो फ्लोर एरिया इसका। जैसे दिस हेडर, ये हेडर का बॉर्डर बॉक्स कितना आ रहा है, इंस्पेक्ट में दिख रहा है ना आपको, div डॉट हेडर 1200 बाय 57। तो हेडर का बॉर्डर बॉक्स कितना है 1200 इंटू 57, मतलब ये टोटल एरिया है इसका, बट इसका कंटेंट कितना है 1180 इंटू 37। तो हेडर के अंदर जो कंटेंट आएगा वो कितना आएगा, वो 1180 इंटू 37 ही होगा। ठीक है, और जो पैडिंग होगा पैडिंग को अलग से होगा वो, या फिर पैडिंग कंटेंट पैडिंग में। किस में आती है, कंटेंट में नहीं आती, पैडिंग आती है बॉर्डर बॉक्स में। पैडिंग किस में आएगी, बॉर्डर बॉक्स में आएगी। तो 1180 कंटेंट, इसमें 1010 की पैडिंग ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया 1200, ये 1200 ही तो है। नाउ डू वन थिंग, हेडर में वन मोर थिंग ऐड करो, दैट इज बॉर्डर। तो बॉर्डर भी आ रहा है, सी।
अब देख रहे हो कंटेंट ऑटोमेटिकली कम हो गया, कितना है कंटेंट 1174, इसमें 10 ऐड करो 1194, इसमें 3 ऐड करो बॉर्डर, कितना हो गया 1200, इंस्पेक्ट करो सी इट्स 1200। तो सिंपल कैलकुलेशन से आपकी विड्थ क्या होगी 1174 प्लस 10 इंटू टू प्लस 3 इंटू टू, क्योंकि दोनों तरफ से होगी ना बस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ है। मार्जिन हमेशा कहाँ से होता है बाहर से, जैसे दिस इज रैप, तो रैप का मार्जिन 120 और 120 है, ये मार्जिन ऑटो है, तो लेफ्ट से कितना मार्जिन है 120, राइट से कितना मार्जिन है 1200, और रैप का कंटेंट कितना है 1200 इंटू 259, ठीक है। अगर हम इसमें से पैडिंग हटा दें किस तो में, ये टोटल, रैप में तो अगर पैडिंग है ही नहीं, पैडिंग है जीरो नहीं जैसे हमने पैडिंग दिया है हेडर में। कुछ कुछ एलिमेंट, हाँ हाँ हेडर में, हेडर में पैडिंग, हाँ अगर तो हम ये पैडिंग इंक्रीज हो हटा, जाएगा अब, ये देखो पैडिंग हटा दी, अब आपका इनर एरिया इंक्रीज हो गया ना 1194 हो गया, बॉर्डर भी हटा दो, सी ये टोटल 1200 हो जाएगा अब। नाउ बोथ आर इक्वल, तो कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स इक्वल कब होते हैं व्हेन पैडिंग एंड बॉर्डर बोथ आर जीरो, ठीक है। व्हेन पैडिंग एंड बॉर्डर आर जीरो तो उससे क्या होता है दोनों इक्वल बराबर हो जाएंगे। बट सी वी आर यूजिंग बॉक्स यूजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये नहीं होता तो फिर स्ट्रेटेजी अलग होती। अब देखो रैप जो है वो टोटल 1200 है, एड बॉर्डर, तो ये आपका टोटल आपका 1206 हो गया है अब, क्यों, क्योंकि विथ 1200 कंटेंट है, इट्स नॉट बॉर्डर बॉक्स। अब ये बॉर्डर बॉक्स मतलब टोटल है इंक्लूडिंग बॉर्डर होगा, सी तो इनर कंटेंट आपका कम हो जाएगा, सी इट्स 1194, ठीक है। बट ऑल दो ज़्यादा बेटर एंड रिकमेंडेड क्या है, यूज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे फायदा क्या है, व्हेन यू यूज विथ 1200 तो टोटल 1200 ही रहेगा। नाउ यू कैन यूज एनी पैडिंग, आप पैडिंग कितनी भी यूज करो क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना आपकी इनसाइड है, ठीक है क्लियर। okay, सपोज आपने कहा विदाउट बॉक्स साइजिंग दैट लेट्स से योर रैप इज 100%, ठीक है, और 100% है ये, तो दैट मीन्स ये टोटल है फुल एंड टू एंड है। नाउ आपने इसी में क्या कहा पैडिंग 10 पिक्सल, तो सी क्या हुआ देखो पेज पे स्क्रॉल आ जाएगा, वाई 100% में 10 पिक्सल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, सो दैट मीन्स ये मेरी स्क्रीन से 20 पिक्सल एक्स्ट्रा ले रहा है। नाउ अगेन सी द बेनिफिट, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगा तो क्या होगा 100% विल इंक्लूड दैट पैडिंग, तो 100% के अंदर पैडिंग इंक्लूडेड होगी, ठीक है, तो आपका स्क्रॉल नहीं आएगा ऑन 100%। सो दैट्स व्हाई रिकमेंडेड हमेशा क्या है, यूज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बाय डिफॉल्ट बटन की होती है, डिव की कंटेंट बॉक्स होती है, तो डिव की बॉक्स साइजिंग क्या है कंटेंट बॉक्स, इसीलिए हम लोग उसको बॉर्डर बॉक्स दे रहे हैं, बट बटन की हमेशा बाय डिफॉल्ट कैसे होती है बॉर्डर बॉक्स। सी द क्लियर एग्जांपल जैसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दो एलिमेंट्स हैं डिव क्लास btn, और इसमें डिव लिख दिया एंड बटन जिसकी भी, तो दोनों की क्लास डॉट btn है ना, डॉट btn क्लास को हमने कहा विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, लेट्स से 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, तो देखते हैं दोनों कैसे आ रहे हैं, तो ये है डिव ये है बटन, राइट ना दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर सॉलिड पैडिंग 10 पिक्सल, सी दोनों को मैंने सेम कर दिया, कॉज राइट नाउ इट्स विथ 100 डॉट btn div, अच्छा एक बटन था ना, दिस इज बटन नॉट div, सी div बड़ी हो गई बटन छोटी हो गई, जबकि प्रॉपर्टी सेम है, विथ सेम है हाइट सेम है, बट डिफरेंस किस चीज़ का है बॉक्स साइजिंग का। सो सी द बटन, बटन कितने साइज का आ रहा है 100/50, यानी कि अपने विथ एंड हाइट के इक्वल आ रहा है, तो बटन कितना आ रहा है विथ हाइट के इक्वल, क्योंकि बटन की डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग क्या है, सो बटन की डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग क्या है बॉर्डर बॉक्स, तो बॉर्डर बॉक्स मतलब वो इंक्लूडिंग बॉर्डर एंड पैडिंग होगा, लेकिन डिव की क्या थी कंटेंट बॉक्स, तो दैट्स व्हाई डिव में क्या हो रहा है, सी इंस्पेक्ट योर डिव, डिव कितनी आ रही है 126 आ रही है, जबकि बटन कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है आपके लेआउट्स अलग अलग बनेंगे, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिकमेंड यूज
बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इससे बेनिफिट क्या है? सी बोथ आर इक्वल, क्लियर? सो ऑलवेज कौन सी बॉक्स साइजिंग प्रेफर करनी चाहिए? बॉर्डर बॉक्स, क्लियर? एनी डाउट? बॉर्डर बॉक्स हटाना दोबारा, सॉरी, अभी बॉर्डर बॉक्स डाला था वो हटा करके दिखाना। तो सी बटन 100 बाय 100, 100 बाय 50 होगा, डेव बढ़ जाएगा, बिकॉज डेव का कंटेंट 150 है, डेव का कंटेंट 150 है। डेव में कंटेंट में 10 पैडिंग ऐड करो तो 120, 3 बॉर्डर ऐड करो तो 126। नाउ हवर सी विड्थ कितनी आ रही है? 126 आ रही है। तो डेव की विड्थ किसकी विड्थ है? कंटेंट की। बटन की विड्थ किसकी विड्थ है? बॉर्डर बॉक्स की, यानी कि टोटल की, क्लियर? सो बेसिकली इट्स कंफ्यूजन। लाइक आप एक शोरूम में गए, जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी, जब आपको ऐड दिखती है, सी द प्राइस इज 799, सो दैट मीन 7,99,000, बट व्हेन यू गो टू द शोरूम, वो आपको कहते हैं सर ये आपको 9 लाख ऑन रोड पड़ेगा। क्यों? वो चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते ना, इंश्योरेंस का, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, देन डिलीवरी चार्जेस, देन और क्या होते हैं इसमें, जितने भी आपके एक्स्ट्रा होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सो दैट आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है? तो ये कुछ वैसा है। डेव में क्या है? एक्स्ट्रा थिंग्स चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड, बटन क्या है? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो ज़्यादा बेटर क्या है आपका? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। दैट्स व्हाई सी नाउ बोथ आर इक्वल। तो इससे क्या होगा? इफ यू यूज विड्थ इन पिक्सेल्स और परसेंटेज, आपके डायमेंशन हमेशा सेम ही रहेंगी, ठीक है? क्लियर? तो सी सर व्हेन जो यू, आपने मेटा टैग इसमें यूज किया है अपने आईई वाला जो अभी ये ये वाला, ये ये बेसिकली ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के लिए होता है, ऑल्दो नेक्स्ट ईयर से ये ब्राउजर खत्म हो जाएगा, बट थिंक इसकी आई की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो एज जैसी नहीं होती, सो दैट्स व्हाई वी यूज एक्स यूए compatible, सो दैट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है वो एज की जैसी कॉन्फ़िगरेशंस को, लेआउट इंजन को यूज करे, ओके सर। ठीक है? हमारे जो ब्राउजर्स होते हैं ना, इनकी जो लेआउट इंजन है वो भी अलग अलग हैं। क्रोम किसको यूज करता है? वेबकिट लेआउट इंजन को, जबकि सफारी का जो अपना लेआउट इंजन था वो पहले से ही वेबकिट है, ठीक है? फायरफॉक्स का पहले कोई और था, लेकिन अब नाउ अगेन दे आर यूजिंग वेबकिट लेआउट इंजन। माइक्रोसॉफ्ट का टोटली अलग है, एमएस लेआउट इंजन होता है। ओके, सो व्हाट इज पैडिंग? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ एंड हाइट जो होता है, दिस इज द कंटेंट। सेकंड क्या आता है इसमें? पैडिंग। पैडिंग क्या है? द इनसाइड स्पेस। जैसे सी दिस पिक्चर, इस बॉक्स के अंदर पैडिंग 0 है, इस बॉक्स में पैडिंग है, मींस पॉजिटिव है। तो पैडिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, पैडिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नाउ दोनों में से ज्यादा यूजर फ्रेंडली कौन सा है? ऑल्दो इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, बट कौन सा होगा? विद पैडिंग। सो सी दिस बटन इज यूजर फ्रेंडली ना, क्योंकि यहाँ से इनसाइड की तरफ अंदर क्या है? देयर इज अ गैप, तो हमेशा वी हैव टू यूज पैडिंग इनसाइड। तो पैडिंग का फायदा क्या है? कंटेंट कोई भी कॉर्नर को टच नहीं करेगा। और अगर नहीं यूज कर रहे हो पैडिंग, जैसे सपोज लेट्स रिमूव द पैडिंग फ्रॉम हेडर, तो सी ब्रांड का बी जो है वो बॉर्डर को, आउटलाइन को बाहर टच कर रहा है, बैकग्राउंड को, ठीक है? तो पैडिंग हमेशा क्या करता है? इंसर्ट गैप। यूनिट्स होती हैं पिक्सेल्स, ईएमएन, परसेंटेज। दिस इज अ बॉर्डर। पैडिंग हमेशा बॉर्डर के इनसाइड होगी या बाहर होगी? तो पैडिंग इज ऑलवेज अंदर इनसाइड। तो पैडिंग, तो बेसिकली बॉर्डर जो है, इट्स अ बॉर्डर, एक आउटलाइन है आपकी विजिबल, इसके अंदर होती है पैडिंग, एंड इसके बाहर क्या होता है? तो जो बॉर्डर के बाहर मार्जिन। हम स्पेस देते हैं वो क्या होता है? दैट इज मार्जिन। तो बॉर्डर के बाहर मार्जिन है, बॉर्डर के इनसाइड क्या होता है? पैडिंग। ये जो ब्रिक क्या नाम है, जो पैटर्न बन के आ रहा है इमेज का, ये क्या है? दिस इज द कंटेंट। तो ये कलरफुल एरिया क्या है? कंटेंट। ये वाइट एरिया क्या है? और ये ब्लैक है आपका बॉर्डर। नाउ अगर मैं बैकग्राउंड देता हूँ तो पैडिंग में कौन सा कलर आएगा? सी आई एम यूजिंग बैकग्राउंड रेड, तो देख रहा पैडिंग का कलर भी रेड हो जाएगा। क्यों? पैडिंग इंक्लूडेड है ना, उसी का एरिया है, क्या? तो पैडिंग में हमेशा कौन सा बैकग्राउंड आता है? उस एलिमेंट का। सी मेन की पैडिंग में मेन का कलर आ रहा है, नैव की पैडिंग में नैव का कलर आ रहा है, बट नॉट फॉर मार्जिन। तो पैडिंग का शॉर्टकट्स होते हैं लाइक मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, एंड ओनली पैडिंग। दिस इज ओनली पैडिंग मीन्स ऑल फोर साइड्स। देन आता है मार्जिन। मार्जिन कौन सा गैप होता है हमारा?
बॉक्स के बाहर। आउटसाइड, तो बॉक्स के बाहर। सो दीज आर द टू बॉक्स, इनका मार्जिन 0 है, इनका मार्जिन कितना है, पॉजिटिव। नाउ यूनिवर्सली वी हैव ऑलरेडी सेट कि मार्जिन 0 हो जाएगा इससे, और अगर ये नहीं देंगे तो क्या होगा, सी दिस मोर देन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है पैराग्राफ में, गैप्स में, सो दैट्स वाई वी डोंट वांट दिस सेट गैप, सो दैट्स वाई हम लोग यूनिवर्सल सेट कर देते हैं मार्जिन 0। इट्स डिफॉल्ट मार्जिन 0, बट द ड्रॉबैक इज कि दो पैराग्राफ्स के बीच का मार्जिन भी 0 हो जाएगा, एंड नाउ यू कैन ऐड योर कस्टम मार्जिन विद पैराग्राफ। जैसे जहाँ जहाँ पी है दे कैन यूज टॉप मार्जिन कितना, 10 पिक्सल्स। तो दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ का टॉप मार्जिन 10, इस पैराग्राफ का टॉप मार्जिन 10, और फुटर के भी पैराग्राफ का टॉप मार्जिन कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या मार्जिन बैकग्राउंड में आता है। नाउ लेट्स से फॉर द पैराग्राफ बैकग्राउंड इज येलो, तो सी ये येलो एरिया किसका है, तीनों पैराग्राफ्स का, ये तीनों का। इफ इट्स पैडिंग टॉप एंड मार्जिन टॉप तो क्या डिफरेंस आएगा, अगर ये पैडिंग टॉप होता मार्जिन टॉप की बजाय, तो सी वो एरिया भी जो पैडिंग एरिया था वो भी कलरफुल होता, बट इफ इट्स मार्जिन टॉप तो वो एरिया कलरफुल नहीं होगा। सो बैकग्राउंड कलर कौन लेता है, पैडिंग, मार्जिन नहीं लेता। बट इफ देयर इज नो बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड नहीं है, सी दिस इज योर margin top and this is your padding top. Now both are same लग रही है, but recommended क्या है। now padding यूज करने का ड्रॉबैक है, इंस्पेक्ट और पी, सी पी की हाइट कितनी आ रही है, 46 आ रही है, जबकि पी की हाइट 46 नहीं है, 36 है, क्योंकि उसके लाइन हाइट 36 है। so that's why use margin top not padding top। सी नाउ पी की हाइट कितनी आ रही है, 36, क्योंकि जो ऊपर का गैप है वो आउटसाइड गैप है, इट्स मार्जिन नॉट पैडिंग, ठीक है। तो मार्जिन इज द आउटसाइड गैप। मार्जिन की यूनिट्स क्या है, पिक्सल्स परसेंटेज ईएम। मार्जिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, तो मार्जिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। मार्जिन की एक और यूनिट होती है मार्जिन ऑटो, सो वी हैव वन मोर यूनिट वैल्यू फॉर मार्जिन दैट इज ऑटो। सी फॉर द div wrapper वी आर यूजिंग मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट को सेंटर में लेके आता है। सो सी दिस इज रैप जो कि लेफ्ट की तरफ है, so you can use margin लेफ्ट कितना, ऑटो, तो लेफ्ट से ये ऑटोमेटिक गैप ले रहा है। देन मार्जिन राइट भी कितना, ऑटो, तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, सी ये सेंटर आ गया, तो इसका शॉर्टकट क्या है, लेफ्ट एंड राइट ऑटो का ओनली मार्जिन ऑटो। तो दिस मीन्स ऑल फोर साइड्स ऑटो, लेफ्ट से भी ऑटो, राइट से भी ऑटो, टॉप से भी ऑटो, बॉटम से भी ऑटो। टॉप से ऑटो मीन्स जीरो, तो समटाइम्स कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मार्जिन जीरो स्पेस ऑटो, तो जीरो हो गया टॉप बॉटम, ऑटो हो गया लेफ्ट राइट, बोथ आर सेम। तो जीरो क्या है, टॉप राइट ऑटो, बॉटम जीरो लेफ्ट ऑटो, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो क्या करता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर में लाता है। सी यहाँ पे ब्लॉक लेवल कौन है, बीटीएन में मैंने कहा मार्जिन ऑटो, क्या दोनों सेंटर में आए, तो सी डे वॉज ब्लॉक लेवल तो वो सेंटर में आ गया। क्या बटन ब्लॉक लेवल है, तो बटन इज अ ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट, या इनलाइन ब्लॉक, तो बटन कैसा है, इनलाइन, ये इनलाइन ब्लॉक है एक्चुअल में, क्योंकि ये बटन जो है ये इनलाइन ही इनलाइन ब्लॉक में आता है, ठीक है। सो इट्स इनलाइन ब्लॉक, ये ब्लॉक नहीं है, तो अगर ये ब्लॉक नहीं होगा तो ये सेंटर में नहीं आएगा यूजिंग मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो से सेंटर में हमेशा कौन आता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जैसे कि डेव। तो सी अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले चेंज कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, अब दोनों सेंटर में आ रहे हैं। तो मार्जिन ऑटो किस पे काम करेगा, ब्लॉक पे या इनलाइन लेवल पे, ब्लॉक पे। ओनली ब्लॉक लेवल। तो सी फॉर अ पिक्चर, पिक्चर को सेंटर में लाना हो तो पहले पिक्चर का डिस्प्ले चेंज करना, डिस्प्ले ब्लॉक, देन मार्जिन ऑटो, तो ही तो सेंटर में आएगा। तो सी इट्स यूज टू सेंटर लाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। देन वी हैव बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, और विजिबल आउटलाइन, एक विजिबल एरिया जो मार्जिन एंड पैडिंग को सेपरेट करता है। तो बॉर्डर की थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टाइल, विड्थ एंड कलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है द कंपल्सरी वन इज स्टाइल, तो बॉर्डर का स्टाइल सबसे कंपल्सरी, जैसे सी दिस बॉर्डर, इसमें स्टाइल क्या है, सॉलिड, तो दीज आर सॉलिड। तो सॉलिड क्या है यहाँ पे, बॉर्डर का स्टाइल, तो बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड दिया, डिफॉल्ट फॉन्ट कलर है सो इट्स ब्लैक विथ सॉलिड। तो सॉलिड क्या है इसका स्टाइल, वी कैन यूज डैश्ड
तो ये स्टाइल कैसा है, डैश, और वी कैन यूज डॉटेड। तो ये सारे के सारे इसके स्टाइल्स हैं, ठीक है। सी हाउ मेनी स्टाइल्स वी हैव। The first border style is solid, then we have dashed, we have dotted, we have double, we have groove, inset means inside, and then we have none. None कहाँ use होता है? When we want to remove border from default. जैसे I'll put these two elements in a field set. मैंने दोनों को field set में ऐड कर दिया। तो field set में पहले से क्या आ रहा है? See, ये black कलर का क्या है field set का? Border. तो see, when we use field set का पहले से ही border है 2 pixel width का, ठीक है। So we want to remove the border of field set, तो यूज field set का border none, तो border none कर दो, तो सी field set का border remove हो जाएगा। एंड इट्स कंपल्सरी टू यूज CSS border style के बिना border काम नहीं करता, ठीक है। these are border style। फिर सेकंड इज border width। तो border style के साथ क्या होता है, the width of border, जैसे these are 3 pixels, तो डिफॉल्ट border width कितनी होती है, 3 pixel। नाउ चेंज फ्रॉम 3 to 1, तो ये जस्ट कितनी हो गई, 1 pixel, ठीक है। तो दिस इज 1 pixel width। so if you're not using width, the default width is how much, 3 pixels। so the default border width is always 3 pixels। तो 3 is the default, you can increase or decrease। 5 कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एंड 1 कर दोगे तो कम हो जाएगा। And then we have border color। so this is border style, this is border width, and then we have border color। if we are not using border color, the default border color क्या होता है, the font color, not black, font color। see, मैं यहाँ पे font color दे देता हूँ red, तो font color red हो गया। see, border भी कैसा हो गया, border भी कैसा हो गया, red हो गया। so the default font color हमेशा क्या है, inherit होगा font color से। so see this font color। so if you want to change, add a color, now it's blue। so by default, in the absence of color, color is font color, so we have to use color to change or to customize border। but जहाँ पे font color and border color same होगा, वहाँ पे क्या करना है, तो suppose you have a button जिसका border and font color same है, तो वहाँ पे आप color किसको दोगे, border को या font को, बॉर्डर बॉर्डर को देंगे। font को दे दो, border तो automatically वही ले लेगा, ये भी है ना। तो benefit क्या है, use only for font, border automatically ले लेता है। so this is a border property। what is border property, it's a shortcut of style, width and color। जैसे कि this is the border property, ये एक शॉर्टकट किस किसका है, स्टाइल, विड्थ एंड कलर। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख दो। सो व्हेन चारों स्टाइल सॉलिड होंगे, चारों सेम विड्थ के होंगे, चारों सेम कलर होंगे, तो देन यू कैन यूज दिस शॉर्टकट। बट सपोज बॉर्डर का स्टाइल अलग अलग करना है, तो या विड्थ कलर अलग अलग करने हैं, तो रिमूव कलर फ्रॉम दिस एंड यूज बॉर्डर कलर। जैसे मैंने कहा येलो, तो येलो मीन्स ऑल फॉर येलो, ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो यूज येलो स्पेस ग्रीन। तो इससे क्या होगा, टॉप बॉटम येलो, लेफ्ट राइट ग्रीन, तो ये क्लॉकवाइज चलता है। फर्स्ट टॉप कलर इज येलो, सेकंड राइट कलर इज ग्रीन, तो येलो ग्रीन, फिर से येलो, फिर से ग्रीन। वी वी यूज 3 कलर, तो येलो ग्रीन रेड, और फोर्थ इज मिसिंग, तो फोर्थ ले लेगा अपोजिट को, यानी कि ग्रीन को। एंड इफ वी वांट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो वी कैन ऐड मैक्स 4 कलर्स। सी ऑल आर डिफरेंट, येलो, ग्रीन, रेड एंड ग्रे। अब इफ यू अगेन ऐड वन मोर कलर, जैसे कि पिंक, ये सिंटेक्स एरर हो जाएगा, और सिंटेक्स एरर हो जाएगा तो ये फॉन्ट कलर को ही बॉर्डर ले लेगा। तो नाउ दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वर्किंग। तो मैक्स नंबर ऑफ वैल्यूज आर 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 वैल्यूज अलाउड है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज CSS बॉर्डर। तो बॉर्डर के शॉर्टकट्स क्या हैं, लाइक वन लाइन बॉर्डर स्टाइल है सॉलिड, सेकंड लाइन बॉर्डर विड्थ है 2 पिक्सल, थर्ड इज बॉर्डर कलर रेड। सो इन तीनों को एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे सॉलिड 2 पिक्सल रेड, किसी भी ऑर्डर में लिखो, ये कंफ्लिक्ट नहीं करता। एंड सपोज ऑल आर सॉलिड, ऑल आर 4 पिक्सल, लेकिन कलर सबके अलग अलग है, तो टॉप इज रेड, राइट ब्लू, देन रेड ब्लू, तो यू कैन टाइप बॉर्डर कलर रेड एंड ब्लू। रेड क्या है, टॉप बॉटम, ब्लू क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट। सी, एंड इफ ऑल 4 कलर्स और 4 बिट्स आर डिफरेंट, तो पहला कलर कौन सा आएगा, रेड टॉप, दूसरा राइट, ग्रीन बॉटम एंड येलो लेफ्ट।
ये क्लॉकवाइज है एंड स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑलवेज फ्रॉम द टॉप. These are some shortcuts for margin. जैसे suppose margin top 40, right 30, bottom 20, left 10 है, तो you can write margin in one line of code. See, it's a shortcut. तो 40 कौन सा है आपका? Top, right, bottom, left. ये clockwise start होगा आपका. See, ये clockwise start होगा और पहली वैल्यू हमेशा टॉप होती है. तो टॉप 140 है, 2 30 है, 3 आपका 20 एंड 4 आपका 10. तो these are 4 different values. ठीक है. And if top bottom are same, left right are same, so use only 40 20. There's one more property जो border की तरह है. Why border is a part of box model? क्या border space लेते हैं? क्या border spacing लेते हैं? नहीं, दिख तो नहीं रहा. लेते हैं. बिल्कुल border space लेते हैं. See, if I add border solid to hyperlink, तो ध्यान से देखना है hyperlink थोड़े थोड़े आगे आ जाएंगे. तो border क्या करता है? Space लेता है. So that's why box model को border is a part of box model. But when I use tab, तो टैब से सी टैब की ये देख रहे हो व्हाइट कलर की लाइन आ रही है इनके ऊपर. इज इट बॉर्डर? जब मैं फोकस कर रहा हूँ एक व्हाइट कलर की आउट लाइन बन के आ रही है इनके चारों तरफ. ऑलमोस्ट सेम लाइक बॉर्डर, बट क्या ये गैप ले रही है? जबकि बॉर्डर होता है तो गैप होता है, ये गैप नहीं ले रही. तो दिस इज आउटलाइन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटलाइन. तो आउटलाइन इज सेम लाइक बॉर्डर, लेकिन आउटलाइन का फायदा क्या है? आउटलाइन कभी भी गैप नहीं लेती. आउटलाइन मैंने कहा सॉलिड 10 पिक्सल्स. सी, आउटलाइन सॉलिड 10 पिक्सल है और आउटलाइन सॉलिड 5 पिक्सल है. ये गैप नहीं ले रही. हाँ, तो दिस इज आउटलाइन 3 पिक्सल. बट अगर ये बॉर्डर होता तो सी ये स्पेस ले रहा है. सो आउटलाइन इज लाइक अ शेडो. आउटलाइन किसकी तरह है? लाइक अ शेडो. और ये कब आ रही है? फोकस पे. जैसे NAV के A के फोकस पे. तो अगर मैं फोकस पे बॉर्डर दूं तो क्या होगा? मैंने कहा बॉर्डर सॉलिड हो जाए. सी जब फोकस करेंगे तो सी ये फोकस हुआ, देख रहे हो? जब इन पर बॉर्डर आ रहा है तो क्या हो रहा है? ये मूव कर रहे हैं, देख रहे हो? ये स्पेस ले रहा है. तो बॉर्डर हमेशा क्या करता है? स्पेस लेता है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? आउटलाइन. तो दिस इज आउटलाइन नाउ. ये बॉर्डर नहीं है, ये क्या है? आउटलाइन. सो आउटलाइन इज जस्ट लाइक अ शेडो. ये शेडो की तरह होती है. कितना भी बड़ा कर दो, कितना भी कम कर लो, ये स्पेस नहीं लेगा. क्लियर? तो आउटलाइन किसकी तरह है? लाइक अ सॉलिड शेडो जिसमें ब्लर नहीं होता. सो दिस आर CSS बॉक्स मॉडल. तो बॉक्स मॉडल इंक्लूड करता है मार्जिन. कंटेंट को सबसे पहले आएगा कंटेंट, देन आएगा पैडिंग, देन आएगा बॉर्डर एंड देन बाहर आएगा मार्जिन. सो व्हेन यू इंस्पेक्ट एनी एलिमेंट, जो इंस्पेक्ट में टोटल विड्थ दिखाई देती है ना आपको, दिस, जैसे ऊपर लिखी आ रही है 100/50, इसको क्या बोलते हैं? ये कंटेंट. बॉर्डर बॉक्स. जो यहाँ पे लिखी आ रही है ना, जहाँ में मेरा कर्सर है, जहाँ बटन के जस्ट नीचे लिखी आएगी हवर करने पे, इसे हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर बॉक्स. क्योंकि बॉर्डर बॉक्स है 100/50, लेकिन इसका कंटेंट कितना है? 74/24. तो ठीक है. सेम फॉर डेव. डेव का बॉर्डर बॉक्स कितना है? 100 बाय इतना, लेकिन कंटेंट कितना है? 74/24. तो विद इन डेव वी हैव ओनली दिस यूजेबल एरिया. लेकिन अगर हम क्लिक देखें तो क्लिक कितने पे होता है? पूरे पे. लेट्स से फॉर द बटन कर्सर स्टाइलिश पॉइंटर, तो क्लिक हमेशा किस पे होगा? बॉर्डर बॉक्स पे. सी यहाँ पे. तो क्लिक हमेशा किस पे होता है? बॉर्डर बॉक्स पे. पैडिंग पे, मार्जिन पे कभी भी क्लिक नहीं होता, क्योंकि मार्जिन तो आउटसाइड एरिया है. नाउ यू वांट टू ऐड सम गैप बिटवीन हाइपरलिंक्स. इन हाइपरलिंक्स में गैप ऐड करना है, तो ये मार्जिन होगा या पैडिंग होगा? राइट से गैप देना मुझे, तो मार्जिन राइट होगा या पैडिंग राइट होगा? मार्जिन ही होगा. मार्जिन राइट 10 पिक्सल. बट नाउ देयर इज अ गैप, लेकिन कैन वी क्लिक ऑन दिस गैप? नहीं, क्योंकि ये तो मार्जिन है ना, तो मार्जिन पे क्लिक नहीं होता. क्लिक किस पे होता है? कंटेंट पे. यहाँ क्लिक होगा, इसके बाहर नहीं होगा. ठीक है. तो इनसाइड एरिया इंक्रीज करना तो यूज पैडिंग, जैसे कि 5 पिक्सल पैडिंग. सी नाउ आपका यहाँ भी क्लिक हो रहा है, जबकि पहले यहाँ क्लिक नहीं था. तो ये क्लिक एरिया को बढ़ाएगा. तो पैडिंग इंक्रीज द क्लिक एरिया, मार्जिन इंक्रीज द. बट इफ आई यूज बैकग्राउंड F
सी ये ऐसे आ रहे हैं. नाउ इंक्रीज पैडिंग 10, ऐसा हो गया. एंड नाउ आफ्टर 10 इफ आई इंक्रीज द पैडिंग, सी पैडिंग क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है. देख रहे हो, अब पैडिंग क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है. वाई, इसका रीजन क्या है, दैट वी आर यूजिंग पैडिंग टू अ इनलाइन लेवल एलिमेंट, और ए इनलाइन है, ब्लॉक नहीं है. अगर ये ब्लॉक होता तो ये ऐसे आता फुल बिट का. एंड हमें एक इंटरमीडिएट वैल्यू चाहिए, दैट इज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक. सी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग ओवरफ्लो नहीं करेगी. अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, पैडिंग क्या हो रही थी, ओवरफ्लो हो रही थी. सो नाउ वी आर यूजिंग इनलाइन ब्लॉक. तो सी यू गॉट मोर क्लिक एरिया, आपको क्लिक एरिया ज़्यादा मिल रहा है. तो ये एरिया क्या है जहाँ पे क्लिक हो रहा है, दिस इज पैडिंग. ये एरिया क्या है, मार्जिन. दिस इज पैडिंग, दिस इज मार्जिन. ठीक है. सो यूजर फ्रेंडली तब होगा ना, बटन इज बिग, साइज में बड़ा होना चाहिए. सी नाउ, ये जो ब्लू दिख रहा है ये क्या है इसका, 59.36 इंटू 48, ये है इसका क्लिक एरिया. और ये बाहर का इसका क्या है जो ऑरेंज आ रहा है राइट साइड पे, तो ये क्या है इसका, मार्जिन. मार्जिन. तो क्लिक किस पे होगा, मार्जिन पे थोड़ी होगा, पैडिंग पे होगा. सी यहाँ क्लिक होगा, यहाँ क्लिक नहीं होगा. तो मेक प्रॉपर यूज ऑफ सी एस एस बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज. कहाँ मार्जिन आएगा, कहाँ पैडिंग आएगा, मेक श्योर ये आपको क्लियर से पता हो. ठीक है.